other side, ladies and gentlemen, we shift our attention to a front where perhaps Congress party should surrender, but refuses to. I'm referring to Rahul Gandhi's vote chori war, which is more and more looking like a lost battle. The Supreme Court stated today that those raising questions on voter roll revision, that their arguments have no substance, just too much passion without any logic or reasons. It is repeatedly asking those alleging vote chori, where are the so-called aggrieved voters? Where are the complaints? While the Supreme Court is waiting to hear actual victims, aggrieved parties, the Election Commission is now waiting for actual complaints, as those addressing one press conference after another are yet to file a single appeal before the Election Commission or objection to the final draft roll. As India awaits Rahul Gandhi's much touted hydrogen bomb, BJP asked the question, will truth shows now shun their agenda? राहुल गांधी का जो पूरा अभियान बिहार के अंदर था, उसको एक्सपोज खुद आरजेडी और कांग्रेस के वर्कर्स ने कर दिया है, जीरो अपील के आधार पर। जस्ट टू इंसल्ट द नेशन एंड इंसल्ट द इलेक्शन कमीशन, यू डिड ऑल दिस ड्रामा ऑफ वोट चोरी। एक ऑब्जेक्शन अभी तक नहीं आया कि किसी का वोट काट दिया गया, और उल्टा हैदराबाद में जो वोट चोरी करके वोटर आईडी बनवा रहा था उसको कैंडिडेट बना रहे हो अपना कांग्रेस पार्टी। इफ यू हैव दिस मच शेम लेफ्ट, अपोलोजाइज टू द नेशन। आज भी चुनाव आयोग पूरी तरह निष्पक्षता बिहार के विधानसभा के चुनावों में नहीं रख रही। चुनाव आयोग एन केन प्रकारेण भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए, एनडीए को फायदा पहुंचाने के लिए आज भी बिहार में कृत संकल्प है। समाजवादी पार्टी ने 18,000 एफिडेविट दिए। मुझे लगता है बीजेपी सफेद झूठ बोल रही है और जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रही है। Today, even Rahul Gandhi's alliance partner Tejasvi Yadav dumped leader of opposition in this fight. In his press conference, there was absolutely no mention of vote chori at all. Instead, Tejasvi made a big promise to offer one government job per household if the India Alliance is voted to power. The question that we ask tonight is, has Rahul Gandhi's vote chori narrative flopped even before the much touted hydrogen bomb could be unveiled? सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर अधिनियम बनाएंगे और 20 महीनों के अंदर जिस परिवार में भी सरकारी नौकरी नहीं है, तेजस्वी उस हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेगा। You're watching the News Hour at 9, debate number 2 on Times Now, Super Prime Time. Joining me on the debate, Shehzad Poonawalla, Sanjay Jha, Sujata Pandey and Akram Saab. I want to ask you, Sanjay Jha, so much time has lapsed, election announcements have been made. The Supreme Court is asking the question, where are the petitioners? Where are the real petitioners who have a problem with the SIR revision, vote rolls which have been put out? Election Commission is asking, not one appeal has been filed before them. What kind of a lie of a narrative this is, where the hydrogen bomb has never really come out, and the man who was to actually bring out the hydrogen bomb is absconding to Colombia? Not at all true, Navika. Please remember that if it wasn't for Tejasvi ji and Rahul Gandhi taking the SIR issue to the Supreme Court along with several petitioners, the Election Commission would have actually not even disclosed the 65 lakh voters they were planning to remove. Aadhaar would not have been accepted by the Election Commission, which is going to help people vote. And Tejasvi Yadav and Rahul Gandhi have campaigned on mobiles going all over the state of Bihar, several districts. So what you are saying, it was an issue, it is no longer an issue. Is that what you are saying? It is an issue. So where is the complaint? If it is still an issue, where is the complaint? Where is the hydrogen bomb? Where is it? Because Mr. Rahul Gandhi press conference after press conference has stated a hydrogen bomb is coming. कहाँ है मेरे भाई, दे दो. Well, नाविका, उसी के पैनिक में अचानक मोदी जी को 10,000 रुपये देने के लिए उनको बहुत
दबाव पर आ गए हैं ना, इसीलिए जस्ट टू सर्वाइव दे हैव डिस्कवर्ड वी नीड टू गिव 10,000 रुपीज टू विमेन। आपका खटाखट चले तो ठीक है, मोदी जी कुछ अनाउंस करें तो आपके दबाव। शहजाद बन गए हैं नाविका, मोदी जी इतने हताश और निराश हैं, नाविका राजा हो गए हैं वो। नाविका, सीरियसनेस इस विषय की उससे समझ में आती है जब फाइनल ड्राफ्ट पब्लिश हुआ इलेक्शन कमीशन के द्वारा, तो राहुल बिहार या भारत में नहीं बगोटा में थे, और जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चल रहा है तब भी वो बगोटा में है, और इलेक्शन डेट अनाउंस हुई तब भी वो बगोटा में है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आज सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर की हियरिंग हो रही थी। टिल डेट नाउ फ्यू डेज आर लेफ्ट फॉर द फाइलिंग ऑफ द अपील्स, नो अपील्स हैव कम, सो दैट मीन्स दे आर सेइंग दैट द वोटर लिस्ट इज फाइन, बट Prashant Bhushan, who goes from their ecosystem, Navika, please check it, your legal team must have sent you. They were presenting 3 affidavits of the voters wrongly deleted. Justice Bagchi said, give me the affidavit. So Bhushan ji gave the affidavit. Bagchi said, this affidavit is not right. Mr. Bhushan, you are giving me this affidavit. What will I rely on the other affidavits? Then he said to Mr. Bhushan that what are the other affidavits? No, sir, they are oral assertions. Mr. Bagchi, in a sense, castigated Mr. Bhushan right there and then that what kind of papers are you submitting to the court? Having said that, let me go to point number 3. Akhilesh Prasad तो हमारी पार्टी में नहीं है. Akhilesh Prasad is from Congress. He says SIR is not a big issue. Tejasvi Yadav has gone on to the other issue. Bihar Yatra he removed. But please Navika, note one pattern. It is not vote chori, it is truth chori. Maharashtra में कुछ नहीं निकला, आनंद में कुछ नहीं निकला, महादेवपुरा में। पर मैम, yesterday we have done a story on Naveen Yadav. You remember 8 and 9 p.m. Naveen Yadav, who did the fake voter ID card distribution booked by Telangana police. Navika, half an hour ago, Congress has announced him as the candidate in Jubilee Hills. Ninjappa was convicted in the High Court of Karnataka. Navika घर में वोट चोर, और वो चोरी करके उल्टा सीना चोरी करते हैं। ये है गजब का इनका कॉन्फिडेंस। Akram Saab, I at least appreciate the intelligence of Tejasvi Yadav. वो पूरी तरह से इलेक्शन पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, वोट चोरी का नाम नहीं लिया। वो अपने जनता से क्या वादे हैं उस पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, क्या विजन है, कैसी गवर्नेंस है, जॉब्स एवरी हाउस होल्ड वो दे पाएंगे कि नहीं, ये अलग बात है। लेकिन उनका प्रॉमिस, उनकी विजन ये है, एंड वी शुड टेक इट एट फेस वैल्यू। बट वोट चोरी का वो नाम नहीं लेते। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या थोड़ा सा पछता रहे हैं? वो जो यात्रा वात्रा की थी, कोई अधिकार रैली कर ली थी, यात्रा कर ली थी, अब तो ये मुद्दा ही नहीं रहा। देयर इज नोबडी विद एन अपील, देयर इज नोबडी विद अ कंप्लेंट। तो ये इतना साउंड एंड फ्यूरी किस बात का था? नविका जी, उम्मीद है कि आप मेरी पूरी बात सुनेंगी। मैंने पीसफुली अपने को पैनलिस्ट की बात को सुना है। आपको याद हो जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आधार को मानना पड़ेगा आपको, इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट किया, तो वो राष्ट्रीय जनता दल हमारी तरफ से जो याचिकाएं की गई थी उसके ऊपर सुनवाई हुई थी। तो वोट चोरी का जो मामला है, एसआईआर का जो मामला है, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी और हमारी पूरी पार्टी और हमारे बाकी तमाम नेता इसके विरुद्ध बोल रहे हैं। हमारी पार्टी का पोजीशन है। आपके इलेक्शन कमीशन में पहले 65 लाख नाम जुड़ते हैं, बाद में उसको हटा देते हैं, फिर फ्रेश लिस्ट लाते हैं। आपके यहां क्लैरिटी कहां है? इलेक्शन कमीशन किसके डिक्टेशन पे काम कर रहा है? कोर्ट ने कब कहा कि ये बहुत ही परफेक्ट हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट का एक आप कमेंट मुझे बता दें, एक रिमार्क्स बता दें, हमारे पास भी रिसर्च है, कहीं नहीं ऐसा कहा है। सुप्रीम कोर्ट रिपीटेडली आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इलेक्शन कमीशन कटघरे में खड़ा है। किसके लिए काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन? जस्ट वन, इलेक्शन कमीशन को पहले पंगु बनाया गया। आप एक ऑर्डिनेंस ला करके इलेक्शन कमिश्नर बनाने की प्रक्रिया में पहले छेड़छाड़ करते हैं। एक प्रधानमंत्री होंगे, एक उनके कैबिनेट का मिनिस्टर होगा, एक लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। भाई 2 की मेजोरिटी आपके पास होगी, आप जिसको बनाए, जिस मूर्ति को बनाए, काम करवाना चाहे आप काम करवाए, यही हो रहा है। लेकिन अकरम साहब, कंप्लेंट कहाँ है, अपील कहाँ है, कहाँ है, दिखाइए ना। Just one line. Okay, what's your line? नाविका, just one line. अभी आरजेडी के प्रवक्ता जो कह रहे थे, एसआईआर पे तो ये स्टे लगाने गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया, पर सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पे 45 मामलों पे सुनवाई करके बोला ईवीएम ठीक है, मानते सुप्रीम कोर्ट की? नहीं, आप ना ईवीएम पे नहीं मानते।
Pandey, I'm completely out of time, but Sujata Pandey, I want to ask you, vote chori, is it an issue in Bihar anymore? Ke tie phis? नहीं, पूरा टाइटा फिस है और इसीलिए तेजस्वी यादव ने वोट चोरी का नाम भी नहीं लिया और रोजगार पे आ गए। पर नाविका, यू हैव टू गिव मी 30 सेकंड टू एक्सपोज तेजस्वी यादव फ्रॉडुलेंट इलेक्टोरल होक्स। व्हाई? बिकॉज ही सेड कि वो हर घर में एक नौकरी देंगे। बिहार की पूरी पॉपुलेशन कितनी है? 13 करोड़। हाउस होल्ड कितना है? 2 करोड़ मान लीजिए, 2.5 करोड़ पर 2 करोड़ मान लीजिए। मतलब अगर 2 करोड़ लोगों को हाउस होल्ड को जगी तो हम उनके 2.5 करोड़ 2.5 करोड़ ही हैज टू गिव द नौकरी। नाउ विद दिस डेटा ही हैज टू अपॉइंट 33,333 employee, train them and give them employment letters every day without any holiday, 7 दिन। ये है इनका कैलकुलेशन। दूसरा, बिहार का पूरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 2.5 लाख करोड़ और ये अगर आप जोड़ोगे उसमें, जिसमें कि एक ग्रेड 4 के स्केल को जोड़ते हो कि 3.6 लाख पर एनम मिलता है उसको, तो उसको आपने जोड़ लिया 2.5 करोड़, अब उसको आपने मल्टीप्लाई किया 2.5 करोड़ से, तो कितना होता है? 7,20,000 करोड़। तो मतलब बिहार के बजट से ज्यादा इनका रोजगार का बजट है और बिहार के बजट में ऑलरेडी 42% रोजगार देने में और पेंशन देने में और सैलरी देने में जा रही है। तो तेजस्वी यादव ये बताएं कि क्या कष्ट करेंगे कि ये जो वो तेजस्वी खजाना, ये तो आपने बहुत आगे की बात कर दी सुजाता पांडे जी। खटाखट मॉडल जो है उसमें देने की बात नहीं होती, कहने की बात होती है और ये हम कांग्रेस के मॉडल से जान चुके हैं। लेकिन आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि वोट चोरी तो गई, अब ये नौकरी वाली बात कहां तक पहुंचती है समय बताएगा। थैंक यू वेरी मच टू ऑल माय पैनलिस्ट एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर जॉइनिंग मी ऑन द न्यूज आफ्टर नाइट। गुड नाइट, बी सेफ।